ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکومت میں ہوں، لیکن ایک چیز ان میں دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ لیتے ہوئے انہیں یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آتی۔ میں ہوں منور مرزا اور آج کے تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہوں کا ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ان کے لحاظ سے ایک ڈیڈ لاک میں چلی گئی یا جمود طاری ہو گیا، اور ان کے لیے یہ معاملہ سامنے آیا کہ وہ اب آگے کیسے بڑھیں، اور وہ پروگرام جو کہ انہوں نے تقریباً گزشتہ 6 مہینے سے ترتیب دیا تھا، جسے وہ فالو کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے 11 یا 10 جماعتوں کے ساتھ، وہ جو تھی وہ تمام کا تمام اچانک اسٹینڈ اسٹل کے اوپر آ گیا۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ جو 9 جماعتیں تھیں جن میں نون لیگ بڑی پارٹی ہے، اس میں اور خود مولانا فضل الرحمان جو کہ اس اتحاد کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی قسم کی لانگ مارچ اگر حکومت کے خلاف کرنی ہے اور اسے اسلام آباد لے جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے، یا کم از کم نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ تمام جماعتیں دے دیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی رائے جو تھی وہ اس سے مختلف تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے تجربہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں چھوڑ دینے کے بعد بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا کہ سیاسی میدان کے اندر کوئی بڑا کام کیا جا سکے۔ اور اس سلسلے میں وہ اپنے 1985 کے ایکسپیرئنس کا بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو وہ سیاسی جماعتیں بہتر طریقے سے جانتی ہوں گی، اور وہی ایویلویٹ کر رہی ہیں، وہی آپس میں بات چیت بھی کر رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ اس اجلاس کے اندر علاوہ بڑے سربراہوں کے خود جو مین پارٹیز کے سربراہ تھے، یعنی میاں محمد نواز شریف نون لیگ کے، اور جناب آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے خود شریک تھے، اور انہوں نے اپنا جو بالکل پوائنٹ آف ویو تھا، جو وہ رائے رکھتے ہیں کہ کس طرح اس تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے اور مختلف مرحلوں میں کیا کیا اقدامات کرنا چاہیے، وہ بالکل واضح کر دیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جو کہ ملک میں نون لیگ کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، اور وہی اس کی مین نمائندہ بھی ہیں، خود ان کا کہنا تھا کہ جس کو نون لیگ سے یا نواز شریف سے بات کرنی ہو وہ مجھ سے بات کرے۔ تو ظاہر ہے اس جملے کے بعد کچھ اور کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ تو لیکن جیسا ہم نے بتایا کہ یہ ساری صورتحال جو تھی وہ کہاں پی ڈی ایم کو ایک دم اس وقت جب کہ جناب یوسف رضا گیلانی سینٹ کے لیے الیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے مقابلہ کیا تھا، وہ کہاں لے گئی تھی، بہت بلندی کے اوپر لے گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ حکومت اس بات کو مسترد کرتی تھی اور ہمیشہ، اور وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتی اس کے سامنے، اور یہ جو اتحاد ہے اس کی کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ وہ گو الفاظ بالکل ڈفرینٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان سب کا مطلب یہی تھا۔ اور اس یہ جو جمود طاری ہوا ہے فی الحال، اور وہ جو پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا کسی مزید اقدام کی طرف، اس کے بعد حکومت کے جو صفی ہیں اس کے اندر خوشی کی لہر، ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ انہیں ایک اچھا اسٹے مل گیا ہے، اور وہ اس دوران اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے کی، اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے دہرائی کہ یہ ہماری سیکنڈ اننگز شروع ہو چکی ہے، اور ان تمام اپنے وزراء کو اور اپنے کارکنوں کو اور اپنے سب کو جو ان کی کابینہ وغیرہ ہے ان کو کہا کہ اب انہیں بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ 2.5 سال کے اندر ان کی کارکردگی خود وہ سمجھتے ہیں کہ قابل تسلی نہیں تھی۔ مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی جو تنزلی ہے، اس نے حکومت کا امیج جو تھا وہ بہت ہی ڈیمیج کیا، اور خود حکومت
اور वज़ीर आज़म को भी इस बात का पता है और बार बार इस बात का एतराफ़ भी करते हैं और वो कहते हैं कि असल जो हमारे लिए चैलेंज है वो यही मईशत को ठीक करना है। तो इसके बाद आइए अगर सियासी उसके मुताबिक से देखें तो अब क्या जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर PDM अब क्या करेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी। तो या ये कि हुकूमत जो है क्या उन्हें बिल्कुल बेबस करने में कामयाब हो जाएगी। वैसे तो अगर आप गौर करें तो हुकूमत और अपोजिशन का तकरीबन रिश्ता यही मुकाबले का होता है। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि वो अपने तय ऐसे इक़दाम करे कि अपोजिशन जो है वो अगले इलेक्शन में या जब वो आवाम के सामने जा रही हो, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली और सेनेट के इलेक्शन हो, इस काबिल ना हो कि वो उसका मुकाबला कर सके। और अपोजिशन की ख्वाहिश ये होती है कि वो ऐसी तनकीद करे और ऐसे इक़दाम करे जिससे कि हुकूमत जो है वो अगले इंतखाबात में नाकाम हो जाए और उसको इख्तियार। तो ये कोई ऐसी अननेचुरल सी बात नहीं है, यही जमहूरियत में सियासी प्रोसेस का हिस्सा भी है। लेकिन इसमें एक लिंक है, एक कड़ी है जो इन सब के ऊपर हावी है और दर हकीकत वही लिंक है जिसको कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम हुकूमत की तरफ से आते हैं तो अगर हुकूमत को अपोजिशन को बेबस भी करना है तो वो बयानात से या तकरीरों से या ये कि ऐसे इक़दाम जो कि वो उठाती है जिनके ज़रिए अगर वो कोई उन पर सख्ती करती है तो उससे तो वो अपोजिशन को बेबस नहीं कर सकेगी। इसलिए क्योंकि ख़ुद जब वो अपोजिशन में थी तो अगर हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती थी या वो धरने देती थी और वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती थी या मतलब मार्च करती थी और वो हर मामले के अंदर वो जलसे करती थी तो हुकूमत इस बात के ऊपर उसे नहीं वो कर सकी कभी भी, इसलिए कि ये जमहूरियत के अंदर इस बात की इजाज़त तो होती है लेकिन वो तो हुकूमतें असल में किस बात के ऊपर हावी होती हैं अपोजिशन के ऊपर और कैसे ये मुमकिन होता है किसी वज़ीर आज़म और उसकी काबीना या उसकी पार्टी के लिए वो बार बार इलेक्ट होकर आता रहे। तो अगर आप तमाम ममालिक का जायज़ा लें जिनमें हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, या ये कि आप जमहूरी मुल्कों को देखें तो मैं तो बल्कि आपको ये कहूँगा कि आप चाहे उन मुल्कों को भी देखें जहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल है, वहाँ भी जो चाहे वो यक जमाती पार्टी ही क्यों ना हो उसको जो अपनी उसके अंदर वो मज़ीद एक्सटेंशन मिलती है और अगली बार वो इलेक्ट होती है उसके अंदर उसकी डिलीवरी होती है, यानी आवाम के मसाइल को वो किस तरह हल करती है। और आवाम के मसाइल के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि वो आवाम को कैसे सहूलतें देती है और तमाम शोबों के अंदर कैसे वो मज़ीद बेहतरी लाती है और कैसे अपने तरक्की के मेयार को बुलंद करती है, ज़िंदगी के मेयार को बुलंद करती है कि आवाम उनसे मुतमईन हो जाएं। मैं इस सिलसिले में जर्मनी की एक मिसाल दूँगा कि हमने देखा था कि जब मिसेस मर्केल इस इलेक्शन से कबल 4 साल या 5 साल पहले इलेक्शन लड़ रही थी तो एक आदमी से एक टेलीविज़न के नुमाइंदे ने सवाल किया कि क्या आप वोट देने जाएंगे, तो उसने कहा हो सकता है चला जाऊँ, हो सकता। तो उसने कहा क्यों, आप तो इतने पढ़े लिखे और इतने तरक्की याफ्ता मुल्क के नुमाइंदे तो आपके जमहूरी। उसने कहा देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमत ने हमें हर वो सहूलत, हर वो चीज़ और हर वो मतलब ज़रूरत मुहैया कर दी है जो कि हमें ज़रूरत है। तो इसलिए यकीनी बात है जो भी कोई जाएगा वो मिसेस मर्केल को ही वोट देगा और उनको प्यार से बहुत मामा भी कह के भी पुकारते थे और वो आपने देखा कि आज तक वो मौजूद हैं। तो हुकूमतों की कारकर्दगी जो है वो जांची जाती है उनकी डिलीवरी से, चाहे वो ये कहते रहें कि हमारे को बड़ी सख्त हुकूमत मिली है या कम सख्त हुकूमत मिली है, चाहे वो कहे कि हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, चाहे वो कितनी बातें बताते रहें, तो आवाम इस बात के ऊपर नहीं। वो आवाम तो ये देखते हैं कि उनको जब वो रोज़गार के लिए जाते हैं तो क्या रोज़गार अवेलेबल है, जब वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो क्या महंगाई काबू में है, और जब वो अस्पतालों और तालीम और इसके क्या करते हैं तो क्या वो चीज़ें मौजूद हैं, और जब वो निकलते हैं तो क्या मवासलात का निज़ाम, सड़कें वगैरह जो है वो बेहतर अंदाज में, और माहौल याद में अगर वो जाते हैं तो फिर वो ये देखते हैं कि वो कैसा है। ये सारी चीज़ें जो हैं
वो मजमूई तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी देखती हैं। तो एक तरह से हुकूमत जो है वो हर वक्त आवाम के सामने खड़ी होती है अपनी डिलीवरी के ज़रिए, और वो उसको एक तरह से जवाब देती है। दूसरी तरफ अपोजिशन है, वो तनकीद करती है, लेकिन आवाम ही के सामने तनकीद करती है और आवाम में ही उसे प्रतिक्रिया हासिल करनी पड़ती है, उसे बहुत तनकीद, और वो अपनी आप कहिए ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है, चाहे वो एक जमात हो चाहे वो इत्तिहाद हो। उसे ये साबित करना पड़ता है कि हाँ, जब वो इक़्तिदार में आएगी तो एक तो ये है कि उसके अंदर आपस के अंदर कोई रिफ्ट नहीं होगा, और वो आवाम के मसाइल हल करने में यकसुई से काम करेगी। अगर आवाम को ये महसूस हो कि ये कोई 10 जमाती इत्तेहाद है, जैसे हमारा पाकिस्तान जमात, इनमें खुद ही कोई इत्तेफाक नहीं है, खुद ही ये किसी एक बात पर मुत्तहिद नहीं हो सकते, खुद ही इत्तेफाक नहीं कर सकते, तो फिर यकीनी बात है आवाम ये सोचते हैं कि फिर जो हमारे मसाइल का जब सामना होगा तो उसको हल करने के लिए भी इनके पास एक नहीं 10-10 राय होंगी, तो इसी में सारा टाइम निकल जाएगा कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये चीज़ जो है, ये अपोजिशन को भी बहुत सोचना चाहिए कि उसका इत्तेहाद सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत को डिसलॉज करते हैं, या ये कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आवाम में ये क्लियर मैसेज जाए कि जब वो आएंगे तो वो पूरी यकसुई के साथ, चाहे वो 10 जमातें हैं चाहे वो एक जमात है, वो आवाम के मसाइल के हल के लिए डिलीवरी कर सकेगी। और एक बात जिसका कि हम बार बार जिक्र करते हैं, वो और हमने शुरू में भी जिक्र किया कि आखिरकार अगर कोई अपोजिशन हो और हुकूमत हो, उसे ये महसूस हो कि उससे बात आगे नहीं बढ़ रही, यानी मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत ये सोचे कि पार्लियामान तो डिसफंक्शनल हो रहे हैं, सेनेट में कोई काम नहीं हो रहा, लेजिस्लेशन नहीं हो रही, तरक्याती स्कीमों के ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर पा रही, या ये कि वो लोगों को वो सहूलतें और वो चीज़ें मुहैया नहीं कर सकती जिनका उसने वादा किया था या जो वो करना चाहती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दोबारा आवाम से रुजू करना चाहिए, और यही तरीका होता है जमहूरियत में। आप जापान में देख लें, बरतानिया में देख लें, या और कहीं देख लें, और इसके अंदर कोई ऐसा कैद नहीं है टाइम का कि जी आप कहें कि नहीं हम तो इतने अरसे के लिए आए हैं, तो इससे पहले तो चाहे वो आवाम कितनी रोती पीटती रहे, चाहे उसको सहूलतें रहें, तो उसको चाहिए कि वो भी सब्र से बैठ जाए और हम भी सब्र से, हम तो बैठे ही हैं क्योंकि हमारे को तो इतना टाइम मिल गया है, तो हमें तो कैरी ऑन करना चाहिए। कोई नहीं, आप जाएँ आवाम से, अगर आवाम ये समझती है कि आप वाकई में डिलीवर कर सकेंगे तो वो आपको और ज़्यादा मजबूत सी और बहुत ज़्यादा ताकत से आपको की वज़ीराई करेगी। तो ये पहली बात। और अपोजिशन भी अगर ये समझती है कि उसके पास एक ऐसा अच्छा मंशूर है और ऐसी अच्छा लाहेअमल है जिसके ज़रिए वो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकेगी, क्योंकि देखिए सियासत का नाम ही खिदमत है। हर जगह आप मालूमात कर लें तो सियासत जो है वो कोई पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, कोई सियासत जो है वो सिर्फ मिनिस्टर और उसकी गाड़ियों में फिरने का नाम नहीं है, या ये कि दौरे करने का नाम नहीं है, बयानात देने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का नाम नहीं है। ये नाम है आवाम की खिदमत का, और आवाम की खिदमत की जाती है आवाम के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करके और जो उनके मसाइल हैं उनको हल करके। तो वो अगर आपको ये महसूस हो, आपको ये पता चले, महसूस क्या हो, सियासी जमातों के बाद तो ये बैरोमीटर होना चाहिए, उन्हें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, कि आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। तो आवाम अगर मुतमईन नहीं है तो उनसे पूछा जाए कि आप क्यों मुतमईन नहीं है। तो उसका तरीक़ाकार बिल्कुल आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर आप चले जाएँ, किसी वक्त भी चले जाएँ, और जिस मसले के ऊपर आप अटक रहे हैं वहाँ उससे पूछ लें कि आप किस तरह इसका हल चाहते हैं, तो आवाम आपको बता देगी। क्योंकि इज्तिमाई सोच बहरहाल पार्टी सोचों से, और चाहे कितना ही कोई बड़ा स्कॉलर और कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना बड़ा सियासी जाहिर क्यों ना हो, उससे आवाम की इज्तिमाई सोच जो है वो बहरहाल बेहतर होती है।